गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एकलव्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं राजेश। टुडे विल डिस्कस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू। ओके, दिस इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसका जो प्रीवियस पोर्शन है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज नोन एज अ सिंपल टिश्यू और simple permanent tissue. Now we will discuss complex permanent tissue. As we know that complex permanent tissue has the different structure. क्यों बोला उसको complex हम लोगों ने? क्योंकि वो कैसा है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन भी डिफरेंट है, और उसकी जो ओरिजिन है जहाँ से वो जन्मा है या उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है वो भी क्या है, उसका डिफरेंट है. That's why it is known as complex permanent tissue. Simple permanent tissue are of three types, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. We will discuss today the complex permanent tissue. These are of two types, that is xylem and phloem. Both the tissues are known as complex permanent tissue, and these are also known as the vascular tissues. These are also known as vascular tissue. Vascular tissue, why? Because they can vasculate the food, minerals and water, etc. These both are different from each other. They are found in different areas. Xylem is also known as wood. Xylem is also known as wood, and phloem is also known as bast. Okay, so xylem is also known as a conducting tissue, and phloem is also known as a conducting tissue. Both are vascular tissues. Vascular tissues क्योंकि क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, वस्कुलेट करते हैं और मटेरियल्स को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द जाइलम. जाइलम की जो सेल्स हैं ये 4 टाइप्स की होती हैं. दे हैव, जाइलम हैज 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. फर्स्ट वन इज ट्रैकिड्स. अब हम लोगों ने ये देखना है कि पहले तो ये देखिए परमानेंट सेल्स आ गया. These are permanent cells. They are not growing cells. They will not help in the growth. Then what will they do? They will help in the repairing. They will help in the mechanical support. They will help in the preparation of, they will help in the conduction of food and minerals. They will help in the conduction of water. So okay, so different types of cells are here. तो xylem में जो सेल्स है वो 4 टाइप्स की सेल्स है. फर्स्ट वन इज ट्रैकिड्स. ट्रैकिड की जो सेल्स हैं दे आर डेड सेल्स. दीज आर डेड सेल्स. इट मींस दे विल नॉट हेल्प इन द ग्रोथ. देयर सरफेस इज थिकन. दे मे बी लिग्निफाइड और पैक्टिनाइज. ओके, नेक्स्ट वन, सेकंड वन इज वेसल्स. वेसल्स जो सेल्स हैं दीज आर लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स. दे आर लॉन्ग इलोंगेटेड cells, or both these tracheids and vessels are responsible for the long distance conduction of the food and water and mineral. Okay, these are responsible for the long distance conduction of the minerals or water. Okay, after this xylem, parenchyma we have discussed in previous lecture. Parenchyma cells are living cells. In all 4 types of cells in the xylem, only the xylem parenchyma cells are living, rather than all the cells, 3 cells are dead cells. Okay, these parenchyma cells, as we have studied in before, parenchyma cells are living. They will help in the photosynthesis. They will help in the removal of waste products. They will help in the buoyancy. तो वही cells यहाँ पर parenchyma cells की तरह काम करेगी. After that जाइलम फाइबर्स. जाइलम के जो फाइबर सेल्स हैं वो भी कैसे होंगे, डेड सेल्स होंगे. अब बात ये आ रही है कि जाइलम की जो सेल्स हैं, जाइलम की जो वेसल्स हैं उनके ऊपर ट्रैकिड्स और वेसल्स में जो लिग्निफिकेशन हो रहा है, दैट इज द सेल्स आर डेड सेल्स. व्हाई? बिकॉज देयर सेल्स आर एक्यूमुलेटेड विद द लिग्निन, दैट इज द हार्ड मटेरियल, and it will accumulate over the surface of xylem cells. Okay, after this, first type of lignification that it form
दैट इज एन्युलर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्युलर? एन्युलर मींस एज अ रिंग. क्या दिख रहा है आपको? एज अ रिंग ये फॉर्म करेगा उस सेल के ऊपर, एज अ रिंग डिपॉजिट होगा क्या? कौन? लिग्निन. ओके, लिग्निन अगर इस पूरी जो जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकिस और वेसल्स है उनके ऊपर ये जब एज अ रिंग डिपॉजिट हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एन्युलर. क्या बोलेंगे इसको? एन्युलर. आफ्टर दिस इफ द लिग्निन इज डिपॉजिटेड एज द हेलिक्स, एज द स्पाइरल हेलिक्स, देन इट इज नोन. हम लोगों ने देखा होगा स्प्रिंग जो होती है, एक स्प्रिंग का एक हेलिक्स होता है. इस हेलिक्स की तरह अगर ये लिग्निन इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, देन इट इज नोन एज spiral lignification. What is spiral lignification? Okay, then after third type of lignification is reticulate lignification. What is reticulate lignification? Reticulate means as a rat means जो नेटवर्क है, एज अ नेटवर्क होगा. वो क्या होगा? नेटवर्क, एक से एक लिग्निफिकेशन जुड़ेगा. इसका ओरिजिन हमको ध्यान नहीं होगा. नेक्स्ट वन, फोर्थ इज स्केलरी फॉर्म. स्केलरी फॉर्म एज अ लेडर. लेडर हमको पता है, एक पैर रखने के लिए हम लोग ऊपर देखते हैं, फिर ऊपर एक पायदान होता है उसका, एज अ लेडर. तो इसमें भी क्या होगा कि जो लिग्निफिकेशन है वो कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, ऐसा होगा. देन इट इज नोन एज स्केलरी फॉर्म. एंड pitted as we have studied in before, pitted means non-uniform distribution of lignin over the surface of cell wall. तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा? खड्डे होंगे, उबड़ खाबड़ या रफ सरफेस उसकी बनेगी. तो these 5 type of lignifications are found over the surface of tracheids and vessels. Okay, these 4 types of cells are found in the xylem. So xylem is known as conducting. Xylem is known as vasculated. Xylem is also known as a vascular tissue. Why? Because it vasculates something. Or what is the vasculated substance? It vasculates the water and minerals from the root system to the shoot system. अर्थ जो वाटर गेन कर रही है, सॉइल के अंदर जो वाटर है, उस वाटर को ये जाइलम फाइबर्स, जाइलम जो होगा वो एज अ कैपिलरी एक्शन ये ऊपर लेगा इसको, और इट विल conducts the water and minerals towards all parts of plant. Okay, it helps in the photosynthesis क्योंकि raw material जो है वो water है. Okay, next one, phloem. phloem जो है इसका, वो phloem क्या है? सेकंड आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. phloem की जो सेल्स हैं, they are also 4 types of cells. They are all 4 types of cells. First one is sieve tube cells. First cells कैसी है? sieve. Sieve means they have the pores on their surface. They have the pores because these are the dead cells and they have pores over their surface. Pores है वो, इसलिए इसको क्या बोला हम लोगों ने? sieve. sieve जानते हैं sieve क्या होती है? छलनी. छलनी जो होती है उसके ऊपर छेद होते हैं, pores होते हैं. That's why it is known as sieve tube cells. Next one cells are companion cells. They will help the sieve cells to vasculate something. Then companion cells are, companion means they will help the sieve tube cells. And then these are long, narrow and living cells. Companion cells are living cells, their structure is narrow and these are long, elongated. Okay, next one is phloem parenchyma. Parenchyma फिर से आया है. Parenchyma means that helps in different types of functions. B and C that helps in the photosynthesis. क्यों? क्योंकि जो parenchymal cells होती है वो कैसी है? living cells है. they are thin walled. हम लोगों ने 2-3 बार इसको पढ़ लिया है. thin walled का मतलब क्या होता है कि उसकी सेल वॉल जो है, उनकी जो सेल्स है उसके ऊपर, वॉल के ऊपर किसी भी चीज का कोई लिग्निफिकेशन नहीं है. these are formed of only the cellulose material. Okay, storage and short distance conduction of food. they are, जब parenchymal tissue है, that is helping in the storage and the short distance conduction of food. फूड प्रिपेयर्ड जो हो गया अर्थ के, सॉरी, जो प्लांट की लीव्स के अंदर बाय द फोटोसिंथेसिस, दैट विल कंडक्टेड बाय द फ्लोएम, दैट विल कंडक्टेड बाय द फ्लोएम टिश्यू. फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा? फ्लोएम का जो पैरेन्काइमा है, दैट विल स्टोर द फूड प्रिपेयर्ड and short distance conduction of food they will occur. Okay, after this
फ्लोएम फाइबर्स हमको पता है कि जो जाइलम फाइबर है उसी की तरह फ्लोएम फाइबर भी क्या है, आपका डेड सेल्स है, उसकी जो सेल्स है वो भी कैसी है, डेड है। अभी हम लोगों ने देखा था कि डेड वाई, बिकॉज इट इज लिग्निफाइज और पैक्टिनाइज। ओके, देन द फंक्शन ऑफ दिस फाइबर इज मैकेनिकल सपोर्ट, टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द टिश्यू और टू द प्लांट बॉडी। ओके, हम लोग वापस इसको देखते हैं। जाइलम फाइबर क्या था, जाइलम फाइबर में 4 टाइप्स की सेल्स थी। फर्स्ट वन इज ट्रैकिड्स, जिसमें क्या होगा, डेड सेल्स थी। देन आफ्टर वेसल्स आर लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स, और बोथ दी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर लॉन्ग डिस्टेंस कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स दैट इज टेकन बाय द xylem from the soil. After this, xylem parenchyma, beside these all 3 cells, xylem parenchyma is the living part of xylem. These cells also helps in the conduction of water and minerals. Then after xylem fibers are dead cells. They are not growing or they are not supporting the कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, देन आफ्टर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जाइलम का जो ट्रैकिड और वेसल्स है उन वेसल्स के ऊपर लिग्निफाई हो रहा है, डेड सेल हम लोगों ने देखा है। ठीक है, जाइलम फाइबर्स में भी डेड सेल है और ट्रैकिड्स में भी डेड सेल्स है। वो डेड क्यों हुई, व्हाई, बिकॉज उसके ऊपर क्या हो गया, लिग्निन का डिपोजिशन हुआ। और 5 टाइप ऑफ लिग्निफिकेशंस आ गया। कितने टाइप के लिग्निफिकेशन है, 5 टाइप के लिग्निफिकेशंस है। वो लिग्निफिकेशंस कितने टाइप के हैं, 5 टाइप के। एज अ रिंग, अगर वो रिंग के फॉर्म में एक जगह कलेक्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, देन क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन्युलर लिग्निफिकेशन, स्पाइरल लिग्निफिकेशन, रेटिकुलेट लिग्निफिकेशन, स्केलरिफॉर्म लिग्निफिकेशन, एंड ऑल्सो लास्ट वन इज पिटेड। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस जाइलम, जो है वो वस्कुलर टिश्यू है, और इस वस्कुलर टिश्यू को हम लोग मेनली किस काम के लिए जानते हैं, it will conduct the water and minerals from the root system to the shoot system. After this, phloem, what is the main function of phloem, is to conduct the food prepared by the plant in the process of photosynthesis towards all parts of बॉडी की जो प्लांट बॉडी है उसकी पूरी बॉडी के अंदर फूड प्रिपेयर्ड जो हो गया उसको कंडक्ट करने का काम कौन करेगा, फ्लोएम। हम लोगों ने ये सारी चीज पहले पढ़ ली है। फ्लोएम जो है उसमें भी 4 टाइप्स की सेल्स है। फर्स्ट वन है जस्ट सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब्स के नेम से स्पष्ट हो रहा है। सीव ट्यूब मींस दे हैव द पोर्स एंड दे आर डेड सेल्स। आफ्टर दिस कंपेनियन सेल्स आर लॉन्ग, नैरो एंड लिविंग सेल्स। ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जैसा उसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा, पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग सेल्स, देन they will help in the short distance conduction of food. Then after, phloem fibers are dead and they are lignified, that will help in the mechanical support, to provide mechanical support to the plant body. Okay, these are permanent tissues and the simple tissues. Today we have ended all the plant tissues in this lecture. Okay, I hope you understand. If you have any query, then you will discuss to me and my WhatsApp number, or you will discuss on the lecture. Okay, thank you.